Now, students, now let us start exercise 4.2. The 4.2 exercise is based on properties of determinant. By using properties of determinants, we will be solving determinants. The instruction is using the properties of determinants and without expanding. हमें expanding करना है, इसको property लगानी है जो the property which we have just discussed. By using those properties, we have to evaluate determinants. Okay, using properties of determinants without expanding, prove the following determinants. Here is the question number 1. Children, prove that this value of the determinant will become 0. Its elements are x, y, z, a, b, c, x plus a, x plus b, x plus c. Children, if you observe here, elements in column number 3. Elements in column number 3 are expressed as the sum of two terms. देखिए फर्स्ट एलिमेंट दो टर्म्स में है, तो वी कैन एज पर द प्रॉपर्टी वी कैन डिकम्पोज दिस डिटर्मिनेंट एज द सम ऑफ टू. देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी, और थर्ड टर्म देखिए इसमें एलिमेंट्स की थर्ड टर्म का फर्स्ट एलिमेंट है एक्स वाई जेड को प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी, और इसका सेकेंड टर्म है ए बी सी. So now if you these are two determinants. Now in first determinants, call elements in columns number C1 and C3 are identical. Okay, C1 and C3 के elements identical है. तो आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज हो, कॉलम्स क्या हो कि एलिमेंट सेम हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है. यहाँ पे देखिए सेकंड डिटर्मिनेंट में ए बी सी C1 एंड C3 के एलिमेंट सेम हैं, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0. तो इफ़ यू फाइंड इन एनी डिटरमिनेंट, इफ़ यू फाइंड एनी टू रोज और एलिमेंट्स इन टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ determinant will become 0. So the value is becoming 0. So children, here you have to use property only, do not try to expand. Okay, if as per the instruction, by using properties of determinant without expanding we have to solve it. मैंने properties लगा के solve करना है, expand नहीं करना, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है. Now I am taking question number 3 of your NCERT exercise 4.2. question number 3 is evaluate this determinant. Prove that to value of this determinant will become 0. So let us take left hand side. Okay, 2 3 5 7 8 9. Look at children, elements in third रो के एलिमेंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 65 को 7 9 जा 63 प्लस 2 65, 8 9 जा 72 प्लस 3 75. इसको मैं इस तरह से डिकम्पोज कर सकता हूँ. अब देखिए इस डिटर्मिनेंट के कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट दो टर्म में डिवाइड है कि नहीं है. इसमें एलिमेंट्स इन कॉलम नंबर 3 आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2, तो वी कैन डिकम्पोज दिस डिटर्मिनेंट एज द सम ऑफ 2. नाउ पेज नंबर 7. ओके, तो फर्स्ट में इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो जाएगी 2 3 5 7 8 9, 7 इंटू 9 8 इंटू 9 9 इंटू 9. सेकेंड डिटर्मिनेंट 2 7 2 2 2 7 2 3 8 3 दैन दिस. अब देखो इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट डिटर्मिनेंट के कॉलम 3 में एक कॉमन है. व्हाट इज़ कॉमन एलिमेंट? 9 इज़ कॉमन, वी कैन टेक इट आउट. वी कैन टेक 9 आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट. The determinant will be multiplied by 9 times of determinant 2 3 5 7 8 9 7 8 9. And second determinant, if you observe second determinants closely, you would find elements in column number 1 and column number 3 are identical, 2 3 5 2 3 5. So value of the determinant will become as per the property. अब इस property 9 times of determinant elements in first determinant, elements in column number 2 and column number 3 are also identical. So value of the 9 times of this determinant into 0 plus 0 is equal to 0, hence proved. Now I am taking question number 5. So children, evaluate this determinant. Okay, prove that the value of determinants will become 2 times of this determinant. Let me take left hand side. B प्लस सी हमारी डिटर्मिनेंट है, R1 R2 R3 के एलिमेंट्स हैं. अब मैं क्या करूँ, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म
रो R1 को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। इस ढंग से चेंज करूँगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ एज पर द प्रॉपर्टी। मैंने इस रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, इस ढंग से किया कि इन तीनों के एलिमेंट को प्लस कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, देन R1 गिव्स यू B प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम R1 को, तो दिस प्लस दिस, यहाँ पे हो जाएगा एडिशन, ये 2P 2Q 2R, यहाँ पे एडिशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी R1 का थर्ड में X y प्लस z प्लस x प्लस y gives you 2x 2y 2z. Children, of these three terms what is common factor? 2 is common. इन तीनों टर्म में कॉमन क्या है? 2 है। इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं डिटरमिनेंट। आई हैव टेकन 2 एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम R1. सो एलिमेंट लेफ्ट इन द R1 बिकम A B C P Q R X Y Z. Okay, this is your new determinant. Now I am going to transform रो R1 अगेन। R1 को मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, इस ढंग से करूँगा, अप्लाइंग R1 सच दैट R1 माइनस R2। हमें R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि इस ढंग से करना है कि R1 के एलिमेंट्स में से R2 के इस रो 2 के एलिमेंट को माइनस करेंगे। A प्लस B प्लस C माइनस A और P प्लस Q प्लस R माइनस P, ये वाले R2 के एलिमेंट्स को माइनस करने पे what we'll get 2 times of B Q Y, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, ये ऐसी तरह से बन जाएंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस R3 में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म रो 3 के एलिमेंट चेंज होने जा रहे हैं। किस ढंग से होने जा रहे हैं कि हम R3 में से R1 के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। इफ़ यू टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ R1 फ्रॉम R3, ओके, R1 के इसको मुझे माइनस करना है इसमें से सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो पे हम अप्लाई करेंगे। थर्ड आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑपरेशन ऑन रो 3, तो एलिमेंट्स ऑफ रो 3 आर गोइंग टू बी चेंज। तो कैसे किस ढंग से चेंज होंगे? A प्लस B माइनस B हो जाएगा A, P प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q कैंसिल P, X प्लस Y माइनस Y, X बच जाएगा X प्लस Y माइनस Y X। ठीक है, अब नेक्स्ट में ऑन अप्लाइंग, हमें इसको मैं चेंज करा, आई एम गोइंग टू चेंज R2 के एलिमेंट को हम किस ढंग से चेंज करेंगे? आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑपरेशन ऑन रो नंबर R2 सच दैट R2 माइनस R3 करेंगे। ये R2 माइनस R3 के एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ R3 फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ R2। तो ये ABC के एग्जिट सेम रहेंगे, ABQ और APX इतने R1 एंड R3 एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड R3 विल रिमेन अनअफेक्टेड, बट एलिमेंट्स ऑफ R1 आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो C प्लस A माइनस A बच जाएगा C, R प्लस P माइनस P R, Z प्लस X माइनस X Z। हमने क्या किया, ये हमारा है हमारे व्हाट इज दिस एलिमेंट रो R1 R2 R3। आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म ऑन इंटरचेंजिंग एलिमेंट ऑफ R1 एंड R1 एंड R3 के एलिमेंट, जी R1 के एलिमेंट्स इधर जाएंगे, R3 के एलिमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे और सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखेंगे R1 इंटरचेंज R3। 2 वे इम्प्लीकेशन है इस तरह से, R1 इंटरचेंज R ऑन इंटरचेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ R1 R2। जब हम किसी भी डिटरमिनेंट के किन्हीं भी दो रोज़ को और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। माइनस इसीलिए लिखा गया क्योंकि हमने इसमें क्या ऑपरेशन क्या अप्लाई किया है, रो R1 एंड R3 के एलिमेंट्स को हमने इंटरचेंज किया है इसमें। सो ओके, तो द डिटरमिनेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, APX ऊपर आ जाएगा फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थर्ड रो में, BQY मिडिल वाली रो ऐसी। अगेन R1 R2 elements of रो R3। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म रो 2 एंड रो 3। अब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रो 2 के एलिमेंट्स रो 3 में चले जाएंगे, रो 3 के एलिमेंट रो 2 में चले जाएंगे। तो इससे हमें क्या होगा, इस डिटरमिनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बार और माइनस आ जाएगा इसमें, माइनस मल्टीप्लाइड बाय वन मोर माइनस। ये वन मोर माइनस कहाँ कि हमने दोबारा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया है, रो किन्हीं भी इन दो रोज़ को हमने इंटरचेंज कर दी। ये इसकी जगह चला गया, इसके एलिमेंट इसकी जगह शिफ्ट हो गए।
So on transforming, on interchanging R2 and R3, okay, so minus multiplied by minus 2, and this is your determinant, minus minus plus is equal to 2 times of APX BQY CRZ. This is your right hand side, hence proved. Children, other questions up till 6th 7th are homework for you, and we will continue the same exercise in next term. Till then, goodbye students.